Hello, my dear students. I am back today with a new lecture which is spherical mirrors. In the last lecture, we have studied about plane mirrors. So, we are continuing with spherical mirrors today. So, first of all, what do you mean by spherical mirrors? Spherical mirrors means, as the name suggests, it is a part of sphere. हमने एक spherical glass के सिर्फ स्मॉल पोर्शन को only the upper portion we are taking, like you have a bowl and you cut a very small slice from above and polished its surface. ठीक है, so that is the spherical mirror. Now it depends कि how you polished. We can polish it in two ways. One is outside and other one is inside. Whenever we do outside, this is called concave mirror, and when the inner surface is polished, that is called convex mirror. So how you will draw? Only this portion will draw to show a concave mirror. This is a concave mirror whose outer surface is polished, and which one is reflecting? Inner surface is reflecting. Similarly, for convex, we'll draw like this. The inner one is polished and the outer is reflecting. For inner, we'll write polished, and for outer, we'll write reflecting. Alright, so these two types of mirror also we'll study in our syllabus, concave mirror and convex mirror. Now we'll discuss the parts of a concave mirror, or we can call it a spherical mirror because the parts are going to be same in both the mirrors. We are drawing a concave mirror here, and this is the center of the mirror, which is called pole. We'll denote it by capital P. So what is the pole? We'll write about pole, center of the mirror. Center of the mirror is called pole, and this line is called principal axis. What does it call? Now what does it line shows? It is the perpendicular which passes through the pole. So what is principal axis? We will write in short PA. Perpendicular line drawn through the pole of the mirror. Okay. Now we'll denote a center here by capital C, which is center of curvature. This is center of curvature. अब ये center कहाँ से आया? How you will decide this is the center? आपने देखा है कि mirror किसका part है? Sphere का. तो sphere has a center. तो center of curvature is the center of that sphere of which the mirror is a part. तो जो center of curvature है वो उस sphere का center है जिसका mirror एक part है. And in between pole and center of curvature we have a point focus denoted by capital F. So what is focus? Focus is denoted by capital F, and this is the midpoint of P and C. जब भी आप रे डायग्राम्स बनाएंगे हम ये देखेंगे, आप जब स्केल से मेजरमेंट लेंगे आपको ये डिस्टेंसेस इक्वल लेनी है, सो दैट जो F है वो इनका मिड पॉइंट शो हो, C और P का. ठीक है. So these are the things we have to show: pole, focus, center of curvature. ठीक है. Now we'll draw, and similarly for convex mirror also you can have a little bit change will be there. As the inner surface is polished and the circle is completed on this side, so its center will lie on the right side. This is the pole, and also the focus will lie on the right side because the center is towards right
and the midpoint of pole and center is called focus. All right, so these are the points we have to show for a mirror. Now we learn the various image formation for concave mirror and convex mirror. If the objects are kept at different positions, then where their image will be formed, what will be the nature of the image formed, and what will be the size of the image. Okay, now this we are going to study. So next we will draw the various image formations. Image formation in concave mirror. Before learning how to draw the image, firstly we will study for the rules of image formation, कि किस तरीके से जो रे ऑफ लाइट है वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी फ्रॉम अ मिरर, किस तरीके से वो पास आउट करेगी मिरर से. So first rule is, if a ray of light is incident parallel to principal axis, अगर कोई रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, देन हाउ इट विल रिफ्लेक्ट, it will go through focus after reflection. रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी. ठीक है, तो हम रे डायग्राम बनाएंगे इसके लिए. दिस इज अ कॉन्केव मिरर. वी आर ड्राइंग a principal axis. All the things you have to show P, F and C. आप जैसे ही ड्रॉ करोगे स्केल से, अगर आप ये डिस्टेंस अपने डायग्राम में 2 सेंटीमीटर ले रहे हो तो ध्यान रखना है आपको ये भी 2 सेंटीमीटर लेना है, बिकॉज F इज द मिड पॉइंट ऑफ P एंड C. ठीक है, नाउ द रूल इज, इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज कमिंग लाइक दिस पैरेलल. How it will go? It will go through focus. ये इस तरीके से फोकस से चली जाएगी. सेकेंड है इसका बिल्कुल अपोजिट, द रे इंसिडेंट थ्रू फोकस. जो फोकस से आई है वो कैसे जाएगी, विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी. P, F, C. अगर कोई रे फोकस से आई है तो how it will go? It will go parallel. So these two are opposite of each other. One is incident parallel, is going through focus, and another one is incident through focus and it is going parallel. Okay, these are totally opposite of each other. Two more rules are there. The third one is, if a ray of incident through center of curvature, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट हो रही है, the ray is incident through center of curvature P, F, C, like this. ठीक है, थर्ड रूल, इट विल रिट्रेस इट्स ऑन पाथ. वो अपने ही पाथ से वापस चली जाएगी. कैन एनीबडी टेल मी हाउ? बिकॉज हमने एक रूल पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर इन योर प्लेन मिरर, यू कैन सी द प्रीवियस लेक्चर फॉर दैट. इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली टू एनी सरफेस, then it will retrace its path. Why? Because angle of incidence and angle of refraction both are 0 degree. This we have discussed in previous lecture. Now the question is, how it is normal to that surface. You know a circle, सर्कल में रेडियस कितने होते हैं, बहुत सारे.
नो लिमिट, कितने भी रेडियस हम बना सकते हैं. एवरी रेडियस वेक्टर इज पासिंग थ्रू सेंटर, every radius is passing through center and every radius is perpendicular to that point. अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये लाइन जो है C से यहाँ तक, this is the radius of that sphere, so this will be perpendicular. The ray is incident perpendicular, so it will retrace its path. All right, so that's why the center of curvature. अगर आपको नॉर्मल भी ड्रॉ करना पड़ जाए तो आप क्या करना है, किसी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना है, आप सिर्फ उस पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर दीजिए, दैट विल बी द नॉर्मल. फोर्थ इज इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एनी एंगल, अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई है किसी एंगल पर, then it will reflect back at the same angle, then it will reflect at same angle. Who will tell me why? Because it is obeying the laws of reflection. And what was that? I equal to R. How you will show? This is the concave mirror, this is P, F, C. A ray of incident is there at some angle which is I. Now it is not coming parallel, it is not coming through F, not through C. तो हम कोई भी रूल नहीं लगा पा रहे हैं, तो we will simply by using our protector we'll put a dot on the same angle and we'll draw a line. So it will reflect back by obeying the second law of reflection, which is angle I should be equal to angle R. Alright, so these are the rules which we have to follow to make the image formations in various cases for concave as well as in convex mirror. So now we are going to study about that and we are following these rules only. And how many rays will needed to make the image? At least we need 2 rays, and where the 2 rays will meet, that will be the image. So firstly we will start when object is at infinity. Infinity आप समझते हैं क्या होता है? Infinite distance, very far away, not measurable. इससे beyond कुछ नहीं है. हमने अपनी तरफ से बिल्कुल maximum distance ले लिया है. We are drawing for concave. Again I am making you people to tell कि the distance should be same. PF should be equal to FC. Whenever you are drawing your diagram with a scale or pencil, you will always take this distance is equal because F is the midpoint of P and C. अगर आप इसको 2 सेंटीमीटर इसको 3 ले लेते हैं, आपका डायग्राम कभी ठीक नहीं बनेगा. ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है. इन्फिनिटी इज अ वेरी लास्ट डिस्टेंस, तो इनफाइनाइट बहुत दूर. तो इन्फिनिटी से जब रेज आती हैं वो इतना फार डिस्टेंस है कि हमें लगता है वो रेज कैसी आ रही हैं, पैरेलल. दे जस्ट अपीयर्स टू सीम पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कि पैरेलल रेज आ रही हैं बहुत सारी. वी आर जस्ट शोइंग 2 रेज हियर because where that rays will meet, that will be the image. Now see, first ray is in coming parallel. Which rule we'll use? First rule, the ray incident parallel to principal axis will go through focus. ये यहाँ से चली गई. Now about second, the ray incident again parallel will go through focus. तो कहाँ मिल गई दोनों रेज? कहाँ मिली है? फोकस पर. तो इमेज की हम पोजीशन लिखेंगे. इमेज हमें कहाँ मिली है? एट F मिली है. साइज कैसा मिला है? पॉइंट साइज बिल्कुल एक डॉट की तरह. आप जितने मर्जी रेज यहाँ पर ले सकते हैं, सब फोकस से जाएंगी और कहाँ मिलेंगी? ठीक है, फोकस पर मिलेंगी. साइज विल बी पॉइंट साइज. एंड व्हाट अबाउट द नेचर? 2 types of image we have studied in the previous lecture, real and virtual. Are they meeting actually or we are just imagining कि ये मिल रही होंगी? No, they are meeting actually. So the image is real. ठीक है, हमने कोई जबरदस्ती लाइंस को ड्रॉ नहीं किया,
हमने सिर्फ रूल्स को फॉलो किया है और वी फाउंड दैट कि दे जस्ट मीट एट एफ, सो द इमेज विल बी रियल एट एफ. ठीक है, सो दीज थ्री थिंग्स वी हैव टू मेंशन, द पोजीशन ऑफ इमेज, साइज एंड नेचर. सेकेंड इमेज will make when object. Okay, one thing also I will like to tell you कि see, this is the parallel beam of light and it is collecting together at one common point which is focus. ठीक है, तो इस कॉन्केव मिरर ने क्या किया है, कलेक्ट किया है. क्या किया है, कलेक्शन किया है. किसको, रेज को. कलेक्शन ऑफ रेज एट एफ. उसने सारी की सारी इनकमिंग पैरेलल रेज को फोकस पर कलेक्ट कर दिया, कन्वर्ज कर दिया. ठीक है, कन्वर्ज इज ऑल्सो द सिनोनिम ऑफ कलेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इट कन्वर्जेस द पैरेलल बीम of light at F. So it is also called converging mirror. Very important. न्यूमेरिकल्स में आपको कॉन्केव मिरर ना लिखकर ये भी दे सकते हैं, अ कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ इज दिस. ठीक है, सो कन्वर्जिंग मिरर किसको कहा गया है, कॉन्केव मिरर को. तो आपकी 10th स्टैंडर्ड में क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि विच मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर एंड व्हाई इट इज कॉल्ड सो. ठीक है, सो आंसर विल बी concave mirror is called converging mirror and why, because it collects, it converge a parallel beam of light at a point focus. ठीक है, so this was the question from here. Now what we are going to do, हमने बिल्कुल इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्टार्ट किया है. अब हम धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेकर आएंगे. इनफाइनाइट, अब हम कुछ मेजरेबल डिस्टेंस लेंगे जो हम मेजर कर सकते हैं. सेकेंड विल टेक बियॉन्ड सी, कि अभी सी के पीछे रखा है कहीं. थर्ड पोजीशन विल बी एट सी, हमने सी पर ऑब्जेक्ट को रखा है. फोर्थ विल बी बिटवीन एफ एंड सी. फिफ्थ विल बी एट एफ. सिक्स्थ विल बी बिटवीन पी एंड एफ. धीरे धीरे हम ऑब्जेक्ट को स्टेप बाय स्टेप वी आर टेकिंग इट क्लोजर टू द मिरर एंड देन विल स्टडी अबाउट द इमेज, कि इमेज कैसे शिफ्ट हो रही है, क्या इमेज की पोजीशन हमें दिखाई दे रही है. सो सेकेंड विल ड्रॉ when object is at beyond C. ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, C के पीछे है. तो हम फिर से रे डायग्राम बनाएंगे. हमें सिर्फ अपने रूल्स को फॉलो करना है. जो हमने 4 रूल्स अभी स्टडी किए हैं, हमें सिर्फ उनको फॉलो करना है. हमने कोई रटना नहीं है कि ये ऐसे हुआ है, ये वैसे हुआ है. हमें बस अपने उसके रूल के अकॉर्डिंग. अब उसने कहा बियॉन्ड सी, ठीक है जी, बियॉन्ड सी हमने ऑब्जेक्ट रख दिया. अब हमने ऑब्जेक्ट को रखा है क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस तो हमें पता ही नहीं था कहाँ है, तो वहाँ हमने ऑब्जेक्ट की लोकेशन भी दिखाई थी. बट नाउ वी नो कि कितने डिस्टेंस पर वो रखा गया है, तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को दिखाया है. दिस इज द ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट की टिप से यहाँ से कोई भी आप 2 रेज इंसिडेंट कराओ और उनका रिफ्लेक्शन शो कर दो. वन आई एम मेकिंग पैरेलल, इट इज कमिंग parallel. How it will go? Following the first rule, it will go through focus. Second will be incident through focus and it will go parallel. So both the first and second rule we are using. One is incident through parallel going through focus, incident through focus going parallel. Where they are meeting? At this point. Now see, this is important. क्या पोजीशन आई है इमेज की, बिटवीन एफ एंड सी. इमेज हमारी बनी है एफ और सी के बीच में. साइज कैसा बना है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट. साइज उसका है अपना बट ऑब्जेक्ट से अभी थोड़ी स्मॉल है. और नेचर हम लिखेंगे रियल. एक्चुअल में 2 रेज मीट कर रही हैं. और साथ ही साथ एक चीज और आप नोटिस करो, अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो इमेज ऐसे मिली है. ठीक है, सो इट इज ऑल्सो इन्वर्टेड. हमने जब डिफरेंस पढ़े थे रियल और वर्चुअल में, तो मैंने वहाँ लिखवाया भी था कि रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड. ठीक है, तो हमें तीनों चीज़ें पता चल गई, बिटवीन एफ एंड सी, स्मॉलर एंड रियल इन्वर्टेड. थर्ड,
हमें और पास आना है ऑब्जेक्ट के, कहाँ, सी पर। ऑब्जेक्ट इज एट सी। हम ऑब्जेक्ट को मिरर के और पास ले आए हैं, सी पर हम पहुंच चुके हैं। एंड अगेन वी आर मेकिंग अ कॉन्केव मिरर, पी एफ एंड सी। नाउ ऑब्जेक्ट इज एट सी। Again two lines, one I am making parallel which is going through focus, second is incident through focus going parallel। आप देखोगे कि कहाँ बनेगा, ये C पर ही बनेगा। इसकी पोजीशन कहाँ बनेगी, at C only। इट मीन्स जहाँ ऑब्जेक्ट रखा था वहीं आपको इमेज मिल रही है C पर। साइज कैसा मिल रहा है, सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, और नेचर फिर से रियल एंड इन्वर्टेड। रियल है क्योंकि हमने कोई जबरदस्ती नहीं मिलाया, नेचुरली अपने आप जाकर मिल रही है, और इन्वर्टेड है क्योंकि वो उल्टा है। ठीक है, तो आपको देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी केप्ट टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट को हम सी पर रखते हैं तो ऐसा होता है कि इमेज भी हमें कहाँ मिलती है, सी पर। तो आप उसका आंसर क्या लिखोगे कि ऑब्जेक्ट शुड बी एट सी। ठीक है, तो इसमें यही एक अच्छा एक चीज़ और नोटिस करिए आपने इमेज के बारे में, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था इमेज फोकस पर थी, ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास ले आए हो बियॉन्ड सी, इमेज बिटवीन एफ एंड सी हो गई, एफ से थोड़ा दूर हो गई। अब आप ऑब्जेक्ट को और पास ले आए हो एट सी, इमेज एफ और सी के बीच से और इधर शिफ्ट हो गई। मीन्स व्हाट, कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास आ रहा है इमेज मिरर से दूर जा रही है। लेट सी कि आगे के केसेस में भी ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी हम सी तक पहुंचे हैं, अभी हम कहाँ जाना है नेक्स्ट स्टेप में, बिटवीन एफ एंड सी। तो फोर्थ केस हम करेंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बिटवीन एफ एंड सी। आप सब भी अपने नोटबुक्स में साथ साथ बनाइएगा डायग्राम, ट्राई कीजिए खुद से, नेक्स्ट डायग्राम से भी ट्राई कीजिए खुद से बिना देखे। पी एफ सी। ठीक है, अब हमें कहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी। अब हम सी तक पहुंच चुके थे लास्ट स्टेप में। नाउ इन फोर्थ केस वी आर कमिंग एट बिटवीन एफ एंड सी। तो यहाँ हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा है, सेम पैरेलल फोकस से, जो फोकस से आई है वो पैरेलल। तो यहाँ दोनों रेज मिल गई हैं। तो कहाँ मिल गई है, बियॉन्ड सी, पोजीशन, नेचर आप देख रहे हो रियल, इन्वर्टेड, और साइज अब की बार हमने कुछ अलग नोटिस किया है। क्या किया है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो इसमें भी वो रूल फॉलो हो रहा है कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं मिरर के, हम बिटवीन एफ एंड सी आ चुके हैं, तो इमेज सी से कहाँ शिफ्ट हो गई है, बियॉन्ड सी शिफ्ट हो गई है। ठीक है, अच्छा इमेज के साइज में भी कुछ फर्क आ रहा है, आ रहा है। क्या फोकस पर वो पॉइंट साइज नहीं थी, और जब बिटवीन एफ एंड सी बनी थी सेकंड केस में, देन इट वाज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, साइज कुछ आ गया बट ऑब्जेक्ट से स्मॉल था। और जब सी पर है तो साइज सेम हो गया ऑब्जेक्ट का, और जब बियॉन्ड सी है तो वो लार्जर देन ऑब्जेक्ट हो गई। इट मीन्स इमेज जैसे जैसे दूर जा रही है मिरर से उसका साइज भी बिगर हो रहा है। ओके, तो दो चीज़ें हमने पढ़ी हैं कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास आ रहा है, एक तो इमेज जो है शिफ्ट हो रही है अवे फ्रॉम द मिरर, और दूसरा इमेज का साइज बड़ा हो रहा है। अब हम और क्लोज आ जाते हैं मिरर के नेक्स्ट केसेस। ऑब्जेक्ट इज एट एफ। अब हमने फोकस पर रख दिया ऑब्जेक्ट को। फोकस पर इमेज कब बनती थी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था। रिमाइंड योर फर्स्ट केस। तो क्या इसमें कुछ ऐसा होने वाला है, लिंक्ड है, लेट्स सी। अब हमने देखा है यहाँ ऑब्जेक्ट है फोकस पर,
तो एक रे जो पैरेलल है, अगेन रूल सेम। नाउ सी, अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप फोकस वाली रे नहीं बना सकते क्योंकि उस पर ऑब्जेक्ट रखा है, या तो आप बनाइएगा सेंटर वाली ऐसे, या फिर हम बना देते हैं एंगल। मैंने एक रे किसी एंगल पर इंसिडेंट कर दी, दिस इज द एंगल आई, तो मैंने अपना प्रोटेक्टर लिया और उतने ही एंगल पर एक मार्क किया और मैंने उसको ड्रॉ कर दिया एट द सेम एंगल। ठीक है, दो रेज कौन सी ली है, वन इज पैरेलल गोइंग थ्रू फोकस। अब इसमें फोकस वाली हम नहीं ले सकते क्योंकि ड्रॉ कैसे करेंगे, वो तो सीधी लाइन होगी, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो एक हमने लिया एंगल वाला। ठीक है, सेम एंगल पर जा रही है, तो कैसे जा रही है, पैरेलल। कहाँ मिलेगी, क्या ये मिलेंगी, विल दे मीट, नो। हम इमेजिन करते हैं कि शायद जैसे इन्फिनिटी से रेज आ रही थी पैरेलल, तो ये पैरेलल रेज जाकर शायद कहाँ मिल जाए, इन्फिनिटी पर जाकर मिल जाए। तो इमेज कहाँ हो गई हमारी, एट इन्फिनिटी। अब इसका नेचर भी हम क्या लिखते हैं, रियल। और साइज, साइज साइज क्या लिखेंगे, हमने पढ़ा जैसे जैसे इमेज दूर जा रही है मिरर से, बड़ा हो रहा है साइज, तो इन्फिनिटी तक जाकर तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, तो उसको हम लिखेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज। ये नहीं लिखना डोंट नो, हमें क्या पता क्या होगा इन्फिनिटी पर, नो, विल सिंपली ओबे द रूल कि जैसे जैसे इमेज दूर जा रही है मिरर से, साइज बड़ा हो रहा है, तो इन्फिनिटी तक जाते जाते उसका साइज बहुत ही बड़ा हो जाएगा। सो वी आर राइटिंग हियर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज। तो ये थे हमारे 5 पॉइंट्स, अभी तक हम F पर पहुंच चुके हैं। अब 6 आता है जब हम बिटवीन P एंड F, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, बिटवीन। दिस इज द लास्ट रे डायग्राम। कॉनकेव मिरर में आपकी 6 डिफरेंट पोजीशंस हैं, बट कॉन्वेक्स मिरर में आपको सिर्फ 2 ही पढ़ने हैं, तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर इजी लगेगा कि उसमें तो बहुत कम है। When object is kept between P and F, ये बहुत ही स्पेशल केस होने वाला है, लेट्स सी व्हाई। मिरर P F C, मार्कर भी खत्म हो गए रे डायग्राम से बना बना के। नाउ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F, कहीं पर भी, एनीवेयर बिटवीन P एंड F। अब देखिए हम अपने रूल्स लगाते हैं, एक रे पैरेलल गोइंग थ्रू फोकस, कहाँ से जा रही है, फोकस से। दूसरी रे हम दिखा देते हैं इंसिडेंट एट सम एंगल, उतना ही एंगल अप्रोक्सीमेट आप यहाँ बना लो एंड इट विल गो लाइक दिस एट द सेम एंगल, अगेन ओबेइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, I इक्वल टू R। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर ये ब्रॉड हो रही है, जैसे आप लेटर A लिखते हो, अगर ये दो एजेस ब्रॉड हो रहे हैं तो हमें पता है कि वो ऊपर मीट करेगा। सिमिलरली अब इन फ्रंट ऑफ द मिरर तो ये हमेशा दूर जा रही है, दे विल नेवर मीट, बट ऐसा लग रहा है कि शायद अगर ये मिरर के पीछे जा सकती तो ये मिल जाती, कुछ ऐसे। इफ दे आर अलाउड टू गो बिहाइंड द मिरर, तो वो रेज क्या हो सकती हैं, मिल सकती हैं। सो वी आर डिनोटिंग इट बाय डॉटेड लाइंस बिकॉज इट्स आर जस्ट इमेजिनेशन, हम ये सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं कि अगर वो बिहाइंड द मिरर होंगी तो वो रेज मिल जाएंगी। सो दैट्स वाई इट इज अ वर्चुअल इमेज, समझ आ गया। और वर्चुअल के साथ साथ आप देख रहे हो सीधी भी है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, इमेज भी ऐसे बनी है, और अभी तक के सारे केसेस में इमेज नीचे बन रही थी जो उल्टी थी। ठीक है, तो अब जो इमेज है उसका नेचर भी चेंज हो गया, वर्चुअल के साथ साथ वो सीधी भी हो गई है। और साइज, अच्छा पोजीशन लिखते हैं पहले, पोजीशन हम लिखेंगे बिहाइंड द मिरर, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द मिरर तो सिर्फ रेज दूर जा रही है, मिलने का कोई चांस ही नहीं है, तो बिहाइंड द मिरर उसकी पोजीशन रहेगी, नेचर उसका वर्चुअल इरेक्ट रहेगा, और साइज उसका बड़ा रहेगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। डेली लाइफ में आप कॉनकेव मिरर को कहाँ ऑब्जर्व करते हो, स्पून, खाना खाते हो ना, तो जो स्पून का कर्व वाला पोर्शन है, दिस इज योर स्पून, तो जो ये है अंदर वाला पोर्शन,
देखो अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग है ना, तो उसके लिए बाहर वाला पॉलिश्ड हो गया। तो दिस साइड इज कॉन्केव मिरर एंड दिस साइड इज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, स्पून आप ऑब्जर्व करना। So these are the 6-ray diagram for a concave mirror or we can call it converging mirror। अभी हमने देखा concave mirror को हम converging mirror भी कहते हैं। तो 6 cases we have studied for different positions and we found that the 5 cases are real and only the one is virtual. So you can also have a question like where the object should be kept to get the virtual image when the object is kept in front of a concave mirror. So your answer will be if the object is between P and F। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे, इजी लग रहे हैं रे डायग्राम्स बनाने। एक बार वीडियो को देखने के बाद आप सब अपनी नोटबुक्स में जरूर ट्राई कीजिएगा और इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि डिस्टेंसेस इक्वल लेने हैं, तभी डायग्राम ठीक बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। अच्छा, इनको याद करने का भी बड़ा इजी मेथड है। अब आपको लग रहा होगा ये तो बहुत मैसी सा हो गया, कैसे लर्न रखे, कहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ इमेज क्या हो गया ये सब। तो इसके लिए आपको बहुत ही इजी सा मेथड बताती हूँ, ऑब्जेक्ट और इमेज। देखो फर्स्ट, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इमेज फोकस पर है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज इन्फिनिटी पर है। दो लर्न हो गए, इन्फिनिटी बिल्कुल बियॉन्ड, फोकस बिल्कुल पास वाला। तो जो दूर वाला है उसकी इमेज सबसे पास बन रही है, अगर ऑब्जेक्ट पास में है तो इमेज दूर बन रही है। दो केस याद हो गए। थर्ड सिंपल है, अगर सी पर है तो सी पर ही रहेगी। 3 हो गए लर्न 6 में से। फिर हमने किया बिटवीन एफ एंड सी, अगर बिटवीन एफ एंड सी रखा है तो वो बियॉन्ड सी बनती है। और इसका उल्टा कर दो, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा है तो बिटवीन एफ एंड सी बनती है। हो गई 5। 6 हमारा एक्सेप्शनल है, कौन सा, बिटवीन पी एंड एफ। इस केस में इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर। तो हो गए लर्न बहुत इजली 6 डायग्राम कि कहाँ पोजीशन है। रिवर्स करना है, दो स्पेशल केसेस हैं, एक सी वाला जिसमें सी पर बनती है और एक वर्चुअल वाला जिसमें पी और एफ के बीच में है। सिंपल, ठीक है। सो दीज आर द इमेज फॉर्मेशन फॉर अ कॉन्केव मिरर। नाउ वी विल स्टडी फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर में कौन सी सरफेस रिफ्लेक्टिंग है? अंदर वाली, ये वाली। सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोगों का क्या होना चाहिए कि इसको ऐसे क्यों नहीं बनाया, इसका कर्व ऐसे क्यों नहीं लिया? इसके पीछे भी एक कारण है। वो कारण क्या है कि हमें ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखना है, हमें ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखना है, क्योंकि जैसे जैसे अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमें ना साइन कन्वेंशंस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा। तो हम ऑब्जेक्ट को एक फिक्स पोजीशन दे रहे हैं कि हमने हमेशा ऑब्जेक्ट को मिरर के लेफ्ट में रखना है, ताकि बार बार हमारे जो साइन कन्वेंशन है वो चेंज ना हो। तो इसलिए ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखूंगी तो मिरर को ऐसे रखना पड़ेगा ना, बिकॉज दिस सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। अगर ऐसे रख देंगे और यहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि वो पॉलिश्ड है। ठीक है, रेज रिफ्लेक्ट ही नहीं होंगी। नाउ ड्रॉ दिस पी एफ एंड सी। अब ध्यान रखना उसका सेंटर उधर है तो उसका एफ भी उधर होगा, बट ऑब्जेक्ट इधर है। दो ही केसेस इसमें हम करेंगे। फर्स्ट हम करेंगे एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर हमने देखा है कि पैरेलल रेज आती हैं, तो एक रे को पैरेलल बनाया। अच्छा, रूल भी हमें याद रखना है कि वो फोकस से जाएगी। अब बात ये है कि वो फोकस से जाएगी कैसे, वो तो पॉलिश्ड है, वो क्रॉस कैसे करेगी और उसका फोकस उधर है, तो वो रे एक्चुअली उधर जाएगी ही नहीं, वो रे तो यहीं से वापस आएगी। ठीक है ना, वो रे तो यहीं से वापस जाएगी। फिर इसने रूल को कैसे फॉलो किया कि वो फोकस से जाएगी? लेट्स सी, देखते हैं कैसे किया। हम क्या करेंगे, वर्चुअली इसको ज्वाइन करेंगे फोकस से, वर्चुअली, सो दैट हमें पता चल जाए कि कहाँ रिफ्लेक्ट होगी। उस तरीके से वो रिफ्लेक्ट होगी कि अगर उसको पीछे बढ़ाया जाए तो वो कहाँ जाकर मिले,
फोकस से। ऐसा नहीं है अपनी मर्जी से यहाँ ड्रॉ कर दिया, यहाँ ड्रॉ कर दिया। अगर आपने यहाँ ड्रॉ कर दिया तो कहाँ जा रही है, देख लो ये कहाँ जा रही है, इधर। तो हमें उस रूल को फॉलो करना है कि अगर रे पैरेलल है तो उसे फोकस से जाना है, बट वो उधर नहीं जा सकती, सरफेस पॉलिश्ड है, तो इसलिए इसको इस तरीके से हम रिफ्लेक्ट कराएंगे कि अगर पीछे हम एक्सटेंड करें लाइन को तो वो कहाँ जाकर मिलेगी, फोकस पर। ठीक है, अभी तो एक ही रे है तो इमेज हम नहीं बता पा रहे, तो इसलिए हमने एक रे और ले ली। ये भी इंफिनिटी से आ रहा है और ये कहाँ जा रहा है, फोकस से। ये भी इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो कहाँ बन रही है इमेज, यहाँ, बट कैसी, वर्चुअल, हमें नहीं दिख रही वो कहाँ बन रही है, रियल नहीं है, तो ये कैसी है, वर्चुअल। हमने तो ये इमेजिन किया है कि वो उधर गई होगी और वो फोकस पर मिली होगी। ठीक है, तो एक्चुअल में तो ये मिला है हमें, देख रहे हो, एक्चुअल में तो ये मिला है हमें। तो इस मिरर ने क्या किया है, इनकमिंग पैरेलल रेज को ऐसे कर दिया, ब्रॉड कर दिया, ऐसे आई थी ऐसे कर दिया, फैला दिया, क्या कर दिया, फैला दिया। इसीलिए इस मिरर को क्या कहा जाता है, इसका क्या नाम रखा हमने, डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्ज करना मतलब स्कैटर करना, फैलाना। तो इसने इनकमिंग पैरेलल रेज को डाइवर्ज किया है, इसलिए इस मिरर को हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। तो ये इसका पहला रे डायग्राम है कि इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर, वर्चुअल होगी, पॉइंट साइज होगी, एंड ऑफ कोर्स बिहाइंड द मिरर होगी, क्योंकि रियल तो बन ही नहीं सकती। सेकंड केस, इसमें एक ही केस है, एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ मिरर। अब हम मिरर के सामने कहीं पर भी रखें, क्यों, क्योंकि देखो पोजीशंस बनाने के लिए कुछ है ही नहीं, F4 से तो उधर है, तो यहाँ रखो या यहाँ रखो, इमेज अपनी पोजीशन एक ही लेगी। तो कैसे बनाएंगे, ये हमारा P है, ये F है, ये C है, तो कहीं पर भी रख देते हैं। मिरर को पॉलिश किया, कहीं पर भी रख दिया, रूल्स को फॉलो करना है। पैरेलल रे, अब हम पहले ही उसको वर्चुअली फोकस से मीट कराएंगे और वो ऐसे जाएगी। अब दूसरी रे कैसे दिखाएं, दूसरी रे हम इस तरीके से इंसिडेंट करेंगे, आपको एक स्केल लेना है, इस तरीके से रखना है कि पीछे वो कहाँ से जाएगी, सेंटर से, क्योंकि हमने एक रूल पढ़ा है, सेंटर से जो रे क्रॉस करेगी वो अपने ही पाथ को रिट्रेस कर लेगी। क्योंकि हम दूसरे रे हम फोकस पर इंसिडेंट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि फोकस बिहाइंड द मिरर है, हमें वो नहीं दिख रहा। तो इसलिए हमने रे को इस तरीके से इंसिडेंट कराया है कि अगर हम उसको पीछे एक्सटेंड करें तो वो सेंटर पर जा रही है, और सेंटर पर जो रे जाती है वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है, वापस आ जाएगी। तो ये हमारी दो रिफ्लेक्टेड रे हैं, 1 and 2, but virtually they are meeting between P and F। तो ये कहाँ मीट कर रही हैं, between P and F। Nature is virtual, erect and very small। डिमिनिश भी बोलते हैं स्मॉल को, कहीं बुक्स में या कहीं पर आप सुनो डिमिनिश्ड, तो डिमिनिश्ड मतलब वो क्या होता है, स्मॉल ऑब्जेक्ट, स्मॉल इमेज। तो इसमें भी ये प्रॉपर्टी कहाँ यूज हो रही है, आपके जो व्हीकल्स में साइड मिरर होता है, रियर व्यू मिरर बोलते हैं, साइड मिरर देखते हैं जिसमें हम अपने पीछे आने वाले ट्रैफिक को देखते हैं, तो वो ये वाली प्रॉपर्टी है कि आपका ट्रैफिक कितना ही पीछे हो, कितनी ही पीछे आपकी गाड़ी है दूसरी, तो आपको वो मिरर में कंप्लीटली दिख रही है। क्यों, क्योंकि वो साइज को बहुत ही छोटा कर देती है। अब देखो इतना सा मिरर है और आपको उसमें पूरा ट्रक दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि इस मिरर ने उस इमेज को, उतने बड़े ट्रक की इमेज को स्मॉल कर दिया है, सो दैट आपको उस मिरर में अपने पीछे आने वाले सारे व्हीकल्स विजिबल हो। तो ये इसका यूज है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि व्हीकल्स में साइड मिरर या रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। सेकेंड, इसका यूज आपने देखा होगा सिक्योरिटी मिरर में, ठीक है, रेड लाइट्स वगैरह पर, या आप किसी मॉल में जाते हो, ठीक है, वहां पर एक बड़ा सा या कोई शोरूम है, इस तरह का आपने देखा होगा, बहुत बड़ा सा एक राउंड ग्लास सा लगा होता है जिसमें हमें वहां का पूरा वाइड फील्ड दिखता है। ठीक है, तो ये वाइडर फील्ड ऑफ व्यू दे रहा है, चीजों को छोटा कर रहा है, दैट इज कॉल्ड अ सिक्योरिटी मिरर। तो वहां पर हमें सब कुछ उस मिरर में दिखाई दे जाता है अगर कुछ गलत होने वाला है तो
तो इसलिए इसका तो यूजेस अगर पूछा जाए कॉन्वेक्स मिरर के तो 2 यूज आपको करने हैं, सिक्योरिटी मिरर एंड द सेकंड वन इज रेयर व्यू मिरर या साइड मिरर इन व्हीकल्स। कॉनकेव मिरर के बहुत सारे यूजेस हैं। डेंटिस्ट इसका यूज करते हैं एज अ शेविंग मिरर, ठीक है। और बताओ सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेस क्या होता है? सोलर फर्नेस में भी एक कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है, सनलाइट को फोकस कराया जाता है उसके फोकस पर, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए इसके यूज कॉनकेव मिरर के तो यूजेस कॉनकेव, कॉनकेव में आपको करना है एज अ शेविंग मिरर, सैलून्स में यूज्ड बाय डेंटिस्ट, सर्च लाइट, सर्च लाइट मतलब लाइक टॉर्च, ठीक है। उसके अलावा हेडलाइट्स, हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स, जो व्हीकल्स की आगे की हेडलाइट है। उसके अलावा सोलर फर्नेस। तो आपका एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, विच मिरर इज यूज्ड एज सिक्योरिटी मिरर, एज सर्च लाइट, एज हेडलाइट्स, ठीक है। इस तरीके से वो यूज होता है, दैट इज अ यूजेस ऑफ कॉनकेव। और अगर कॉन्वेक्स के आपसे पूछा जाए, आज की क्लास खत्म होने वाली है क्योंकि मार्कर खत्म हो गया है। कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर का जो यूज होगा वो क्या होगा? अभी हमने पढ़ा साइड मिरर और सेकंड यूज हमने पढ़ा इसका सिक्योरिटी मिरर, ठीक है। सो दीज आर द 2 यूजेस। थोड़ा सा वीक लिखा है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा जूम करके देख लेना आप लोग, ठीक है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। सो आज हमने सीख लिया इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स बोथ। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि कैसे रे डायग्राम्स बनाने हैं। बहुत फोबिया होता है बच्चों को कि रे डायग्राम्स में गलती करनी ही करनी है, वो तो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, आप लोग तरीके से ज्वाइन करेंगे, तरीके से ड्रॉ करेंगे तो जरूर बन जाएंगे। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। सो बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।